کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر دور میں آئیں گے نئے، وہ کیسے آئیں گے؟ کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ نہیں کہا ہے انہوں نے. دراصل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صفت کی بنا پر ایک نام دوسرے کو دے دیا جاتا ہے. اچھا، اب انہوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کری جس کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ کوئی ہر بچے کو بوقت ولادت شیطان مس کرتا ہے. اب یہاں جو جملہ استعمال کیا جا رہا ہے بچے کو شیطان کے مس کرنے کے لیے، ماضی کے لیے تو نہیں کیا جا رہا، یہ تو حال اور مستقبل کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا، ایک خبر دی جا رہی ہے. آج کیا شیطان بچوں کو مس نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے بچے کے شیطان کے مس کرنے کی دلیل یہ بنائی کہ اس وجہ سے بچہ چیختا ہے اور چلاتا ہے. اب جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے کیا وہ چیختا اور چلاتا نہیں ہے؟ چلو مثلاً آج اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہوگا تو کیا وہ چیخ رہا اور چلا نہیں رہا ہوگا؟ چلایا ہوگا نا. بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے باہر تو چیخ کر چلاتا ہے نا، روتا ہے نا. وہ کیوں روتا ہے؟ وہ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان اسے مس کرتا ہے. چلے تو یہ پھر سوائے مریم اور ابن مریم کے، یعنی سوائے مریم اور ابن مریم کے، یعنی آئندہ زمانے میں مریم اور ابن مریم کے نام پر بھی بچے پیدا ہوں گے، ان صفات کے نام پر بھی بچے پیدا ہوں گے. اچھا، ان کو شیطان مس نہیں کرے گا. تو پھر یہ تو جو بچے اس صفات پر پیدا ہوں گے ان کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے؟ مریم اور ابن مریم. جی، تو پھر یہ والی آیت کہاں جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا؟ زندہ اٹھایا کہ مردہ اٹھایا؟ زندہ اٹھایا. کہاں لکھا ہوا؟ آپ پڑھیں نا سورۃ النساء کی کہاں پڑھ 158 آیت. پڑھیے، آپ پڑھیے. میں نے پڑھی ہے، مجھے تو نہیں مل رہا سر. آپ بتائیے کہاں لکھا ہوا زندہ اٹھایا؟ اپنی طرف اٹھا لیا تو سب کو اپنی طرف ہی اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اپنی طرف رسول اللہ کو کیا کسی اور کی طرف اٹھایا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہیں اور اٹھایا تھا کہ اپنی طرف اٹھایا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو. تو مرنے کا ذکر ہے نا، تو اس میں اٹھانے کا ذکر ہے. مرنے کے بعد کہیں مرنے کے بعد اٹھاتا نہیں اللہ تعالیٰ؟ او بھائی میری بات سنو، سمجھتے نہیں ہو بات کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. حضرت محمد میرا سوال یہ ہے آپ سے، سوال میرا یہ ہے کہ یہاں زندہ اٹھانے کی بات کہی جا رہی ہے، مردہ اٹھانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ زندہ اٹھانے کی. یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اپنی طرف اٹھا لیا. یہاں پھر وہ مرنے کا ذکر ہوتا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں نا، تو اللہ اٹھاتا ہے ہمیں تبھی تو جاتے ہیں نا، یا خود سے ہی چلے جاتے ہیں؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیسے جائیں گے لوٹ کر؟ اللہ اٹھائے گا نا ہم اپنی طرف، تبھی تو جائیں گے. تو ہمیں تو اللہ پاک نے کہا ہے سب نے مرنا ہے. اب سب نے مرنا ہے بھائی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ بھائی بات سنیں نا، اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، یہ تو بات کنفرم ہے. وہ مار کر بھی اٹھاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زندہ بھی اٹھاتا ہے. تو اگر زندہ اٹھاتا ہے، بات تو سنیں نا، بات تو سن لو. آپ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو بھی اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ان کو دنیا میں ہی چھوڑ دیتا ہے؟ ان کو بھی اٹھاتا ہے. نہیں یار ایسے نہیں ہے نا قرآن میں. اور کیسے ہو؟ اور کیسے ہو؟ تو آپ سورہ زمر کی آیت نمبر پڑھیں 39 سے 30 کی. بے شک ہم آپ کو بھی وفات آنی ہے اور ان سب کو بھی وفات آنی ہے. یہ دیکھیں سب کو وفات آئے گی. جب وفات ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے؟ یہ بتائیے. بھائی اٹھانے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ پہ کیا ہے. آپ مجھے دوسری آیت دکھائیں جہاں اٹھانے کا ذکر ہے. چلو دکھائیں. نہیں میں نے یہ پوچھا کہ جب اللہ میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا جی. اب وہاں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ زندہ اٹھایا. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سنیں، وہ مطلب ہی غلط ہے. کیونکہ اچھا چلیں آپ بتاؤ. جب انسان مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ تب بھی اٹھاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اٹھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی اٹھاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد اس کی روح کو اور اس کے جسم کو دونوں کو دنیا میں نہیں چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح کو اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس روح کو اٹھا لیتا ہے وہ. تو پتہ چلا انسان مرنے کے بعد اٹھایا جاتا ہے. اچھا. اپنے رب کی طرف. رب جو ہے وہ اپنی طرف بلا لیتا ہے اس روح. ہم سب مرنے کے بعد اللہ کی طرف ہی جائیں گے. تو کیسے جائیں گے؟ جب اللہ اٹھائے گا تب بھی تو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ جو ترجمہ آپ پڑھتے ہو نا یہاں رفع کا، وہ ترجمہ بیٹھتا نہیں. کیسے وہ صحیح نہیں ہے. رفع کا میں اس کی دلیل دیتا ہوں. اچھا رفع کا مطلب کیا ہے؟ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں، میں سنو گے تو دوں گا نا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رافع. رفع سے نکلا ہے رافع، یعنی رفع کرنے والا. جو رفع کرتا ہے اسے رافع بولتے ہیں.
اب رفع کا مطلب آپ نے اٹھانا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں، یعنی اس کا سیدھا سا مطلب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں اٹھاتا پھر اللہ تعالیٰ، پھر تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اٹھاتا ہے. کن لوگوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی 294903، آئی تھنک میں ایگزیکٹ نمبر بتا دوں اس کا بھی آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص عجز و انکساری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رفع کر لیتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو رفع کر لیتا ہے، یعنی اس کو اٹھا لیتا ہے. اب مجھے بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکساری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے تھے؟ جی. تو پھر اٹھایا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے. میری بات سنیں، آپ حدیث کے ٹاپک پہ جب دیکھیں آپ حدیث پہ چلے گئے ہیں، میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں. آپ حدیث نہیں مانتے؟ میں حدیث مانتا ہوں. میری بات سنیں. تو جب مانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو میری بات سنیں نا، آپ وہاں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حدیث ماننے کی بات نہیں ہے. آپ یہاں رفع کا مطلب ادھر لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر جو اللہ پاک نے کہا ہے آپ کو رفع کا مطلب اٹھا لیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھی مرنا ہے اور باقی لوگوں نے بھی مرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں مرنے کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا ہے، وہ حضرت عیسیٰ پر اٹھانے کا ذکر کیوں ہوا ہے، یہ بتائیں. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مرنے کا ذکر ہوا ہے، چلیں دکھائیں مرنے کا ذکر. لیکن اب ٹھیک اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے بات ہم کرتے ہیں. آپ نے ہمارے سامنے ایک آیت پیش کری، اس میں ایک لفظ رفع آیا ہے. رفع کا مطلب آپ نے کہا جی اٹھانا. تو میں نے کہا کہ بھائی ہر نیک شخص کو جو عجز و انکساری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اللہ اس کا رفع کرتا ہے. بات تو سن لیجیے نا یار، بات تو سن لیجیے. اس کی بنا پر میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے حدیث. اب آپ نے کہا بھائی میں حدیث نہیں مانتا ہوں، مجھے حدیث سے مانتے دلیل ہیں، آپ فٹ نہ کریں نا. مانتے ہو تو پھر مانو، پتہ چلا کہ رفع کا مطلب تو ٹھیک ہو گیا، فٹ کر رہے ہیں نا. اب صحیح ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا نا. فٹ میں نہیں کر رہا ہوں، تو آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں بھی لفظ رفع ہے، اللہ تعالیٰ رفع کر لیتا ہے. کر لینا ترجمہ جو کرنا ہے، آپ نے زندہ اٹھانا کر لینا. آپ یہاں بھی رفع اللہ ہے، وہاں بھی رفع اللہ ہے، کر لو دونوں جگہ زندہ اٹھانا. اچھا، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا کہاں ذکر ہے؟ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 118 ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، میں جب تک ان میں رہا میں ان کا نگران رہا. اس کے بعد پھر آپ نے ایک جملہ بولا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، کہ جب تو نے مجھے وفات دی، جب میری موت ہو گئی اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، میں نہیں تھا. اب دیکھتے ہیں یہ اپنی وفات کا اقرار عیسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا خواب میں یا کشف کے ذریعے سے کہ کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کر جایا جائے گا. تو میں کہوں گا فرشتوں سے کہ بھائی یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ اپنی ایڈیوں کے بل پھر گئے تھے، یعنی آپ کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا جب آپ کی وفات ہو گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ میں بھی ایسے ہی کہوں گا جیسا کہ عبد صالح نے کہا تھا. جی پاسٹ ٹینس استعمال کہا تھا. آیت بتائیں کون سی؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیبا، وہی آیت پڑھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 118. اچھا، سورۃ مائدہ. تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ میں بھی وہی کہوں گا، یعنی میں نے مستقبل میں کہنا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. عبد الصالح، یعنی عبد الصالح کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 118 ہے سورہ مائدہ. اچھا ایک منٹ. چیک کر. اس آیت میں تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کا اقرار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا کہ میں موت دوں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کہا گیا تھا کہ انی متوفیکا، کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں. وہاں پہ بھی تو کہا ہے نا کہ موت دینے والا ورافعک الیک، انی متوفیکا ورافعک الیک.
ना वराफियों का क्या है सैफी भाई या वराफियों को भैया वराफियों का इलैया हाँ हाँ वो मुताहिर क्या है? लदीना कफरू वो जाइलुल लदीना है ना? क्या ये बताना नहीं है जाइलुल लदीना फौकल लदीना कफरू ये भी बताना हुआ ना खबर तो है ना जिस तरह ये इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दलील दी तो क्या इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खुदा ताला ने नहीं कहा कि मैं तुझे मौत देने वाला हूँ चलिए हाँ जी इशार अंसारी साहब आए कहीं सुकून सी जगह पर आप हाँ जनाब सुन रहा हूँ। अच्छा सुनते रहेंगे बात नहीं करनी कोई मैंने बात करनी है, मैं ये आप पूछना चाह रहा था कि इस क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िक और राफ़िक इलाही का क्या तर्जुमा करेंगे? इरशाद साहब का बेहतरीन सवाल, फेवरेट सवाल। ये सब ये सुन रहा, दोनों का सुन रहा था मैं, तो तर्जुमा करें इसका क्या होता है जनाब? सुन इन्नी मुतवफ़्फ़िक और राफ़िक इलाही क्या तर्जुमा है इसका? ये फरमाइए हमारे। हाँ जी हेलो भाई खुर्रम भाई हाँ जी एजाज गई है ना ऊपर। हाँ मैं कर लेता हूँ कोई जी कर शुक्रिया बहुत बहुत। आज सर का दर्द हम ले लेते हैं चलो तो मैं ऐसे चुप करके बैठा हूँ। जी अंसारी साहब जी फरमाइए। आप मानते हैं इसमें इस आयत को ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के लिए नहीं इसमें तो नहीं, इसका तर्जुमा करें क्या होती है? मैं इतनी अरबी नहीं जानता जितनी आप अरबी जानते हैं, वो बताएं इसकी इन्नी मैं तो मुतवफ़्फ़िक और भाई राफ़िक। जी बोलिए। मैं भी आप ही की तरह हूँ, इतना जी। मैं अरबी दान नहीं हूँ जी ठीक है ठीक जितना आप हैं ये ठीक है। नहीं, मैं भी आपको जानता हूँ। चलिए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे खुदा ताला क्या बता रहे हैं? आपने तो हमारा तर्जुमा सुन लिया ना, आप क्या क्या तर्जुमा? मानते हैं यहाँ पे आपने क्या तर्जुमा किया इसका? कि यकीनन मैं तुम्हें मौत देने वाला हूँ या मैं अच्छा। तुझे मौत दूंगा? अच्छा ये तर्जुमा किया आपने? इन्नी मैं यकीनन मैं अल्लाह ने कहा ना हाँ कि मैं तुझे मौत दूंगा ठीक है। ठीक है और फिर कहा कि मौत दूंगा और फिर तेरा रफा करूंगा। ये सही है। हाँ तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे मैं- सही मैं- बात हो रही है? मैंने बात सही नहीं करे ना, अल्लाह ताला ने आप मौत करो। का लफ्ज़ इस्तेमाल, सुने मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, फौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दोनों में मैं कोई फर्क ठीक है है। नहीं जी? हाँ जी सही है बिल्कुल तो वफात फिर तो आपने मैं मौत वफात का दूंगा। तो मौत का तर्जुमा नहीं करना चाहिए, वफात के माने मौत के नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, वफात के मायने क्या होते हैं? मौत के माने पूरा का पूरा ले लेना, वफात के मायने क्या होते हैं? वफात के माने पूरा का पूरा ले लेना, कब्जे किस में तरह कर लेना। मतलब पूरा का ले लेना किस तरह होता है? मैं आपको अगर कोई चीज पूरी की पूरी दे दूं तो वो वफात पा जाएगी? नहीं देने की बात नहीं है, लेने की बात कर रहा हूँ मैं। आप उर्दू तो जानते अगर हैं ना? आप मुझसे कोई चीज पूरी की पूरी ले ले तो वो वफात पा जाएगी? देखिए वालिद साहब की वफात हुई है। तो कांटेक्स को देखना पड़ेगा। सुने अल्लाह ताला ने इन्नी मुतवफ़्फ़िक का इन्नी मुमीतों का नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पे। जो नहीं किया उस पर तो हम बात नहीं करेंगे ना। आपने कहा बात है। कि यहाँ चलो, पे चलो। मौत की बात नहीं हो रही है। अंसारी साहब रुक जाए। जी आपने रुक जाए। कहा यहाँ मौत रुक की जाता। बात नहीं हो रही है, यहाँ जी। पे किस चीज की बात हो रही है? वफात की बात हो रही है ना। जी मैंने आपसे पूछा वफात का क्या मतलब है, मैं आपने कहा पूरा कर लेना हाँ या पूरा ले लेना, आपने कहा था ठीक है। जी यही कहा है ना, ले हाँ, लेना। यही कहा। अगर कोई चीज आप पूरी ले लो आप तो वो वफात पा जाती है। मैं पूरा ले लूंगा तो यहाँ पे वफात के क्या माने ले रहे हैं आप? मौत के माने ले रहे हैं? आपने तो खुद कहा वफात मौत के मायने में नहीं होता। मैं मौत आपसे के मायने में वफात नहीं का होता। मायने समझ रहा हूँ ना। आपने कहा ना। आप समझ नहीं रहे ना, चलो बोलिए। समझ रहा हूँ ना, आप समझाओ। आपने कहा वफात मौत के मायने में नहीं है, मैंने कहा नहीं चलो वफात के मायने बता दो। जी। आपने कहा वफात का मायने है पूरा लेना, ठीक है। जी अब आपने एक चीज पूरी ले ली तो वो चीज वफात पा गई है, मैंने ये सवाल उठाया है। अच्छा मैंने पूरी लेने के साथ वफात तो क्या जिक्र, मौत का तो जिक्र नहीं है। पूरा मैंने तो मौत का जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो वफात ही का जिक्र कर रहा हूँ। चलो वफात ही का जिक्र किया तो मैं तुझे वफात दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा।
तो वफात क्या होता है? वफात के माने पूरा पूरा ले लेना। मतलब अभी मैं आपके कर- वालिद साहब को अल्लाह ताला ने पूरा पूरा लिया हुआ है? नहीं उनको वालिद है के लिए होता है, ये बात कुरान की कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है भाई। आप कुरान शरीफ Context की को। बात हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट सुने ज्यादा ना बोले, ज्यादा बहुत बोल रहे हैं आप। जो कॉन्टेक्स्ट कोई चल रहा है मसला उसको नहीं है। बताइए क्या माने होते हैं इसके। इन्नी मुतवफ़िक़ और आपका क्या तर्जुमा है? मुतवफ़िक़ इसका का मतलब ये है कि मैं यकीनन मैं तुझे वफात दूंगा, ठीक है, यकीनन, ठीक है, यकीनन ठीक मैं नहीं तुझे है। वफात दूंगा। आप क्या है भाई बताओ? मैं पूरा वफात का आपने पूरा, खुद कहा कि यहाँ पे मौत नहीं है, वफात का मतलब है वफात है। आप बताए ना वफात है, हाँ वफात है, वफात के माने मौत से नहीं है। हाँ, ठीक है। अब देख लो, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, यकीनन मैं तुझे वफात दूंगा, ठीक हाँ। है, ठीक तर्जुमा है। नहीं ठीक नहीं है कह रहे वफात ये में, कह रहे ये ठीक नहीं, अरे कैसे ठीक नहीं है? पहले उर्दू तो सीख लिया, अब ठीक है क्या उर्दू तो ठीक कर लिया। आप ये भी तर्जुमा बात- करो, आप तर्जुमा करो, आप तर्जुमा। मैं करूँ या तर्जुमा? ईसा इन्नी मुतवफ़िक, हाँ जी, इसका तर्जुमा जी, करो। मैं पूरा का पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। नहीं, मैंने राफ़ियों का भी किया है, नहीं या अच्छा नहीं ईसा क्या, चलो इन्नी मेरा ख्याल, चलो मुतवफ़िक। चलो ठीक है, मैं पूरा पूरा ले लूंगा। क्या क्या ले जिसको लूंगा? जिसको जिसको जिक्र किया, कहा इन्नी ईसा मुतवफ़िक़ा। अलैहिस्सलाम को, या ईसा अलैहिस्सलाम को मैं पूरा पूरा ले लूंगा। जी पूरा पूरा अब तो ले लूंगा। तो मतलब ये कि अरबी में जहां पे भी किसी चीज को पूरा पूरा लिया जाए उसका मतलब होता है क्या? क्या होता वफात। है? वफात वफात होता है। जी। अच्छा, सही है। अब मैं समझता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले किसी को अल्लाह ताला ने पूरा लिया हुआ है, पूरा, या बाद में? नहीं लिया हुआ है, नहीं तो लिया। फिर ये अरबी में कहां से आया है? ये अरबी आया में कहां आया, से है? नहीं अरबी बाद में आया है ना, तो फौत के कहां से अच्छा, आया फौत- है? भाई वही तो सुनो, कहाँ से अरबी से भाई सुने आप कोई बात मिसाल सुनते- है इसकी? बाजे कोई बस मिसाल सुना है? रहा- जी मिसाल ही तो दे रहा हूँ मैं, प्यारे प्यारे। मैं कह रहा हूँ फौत में और मौत में कुछ फर्क है अरबी जबान में, इतना बताइए आप। मैंने अरबी मौत से का लफ्ज छोड़ा हुआ है, वफात वो हमने एक ही तर्जुमा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हाँ। जो आप कह रहे हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा पूरा लिया है, तो किसी और को भी पूरा पूरा लिया है कि नहीं लिया? नहीं लिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा नहीं लिया, आधा लिया है। नहीं पूरा नहीं, उनको तो उनकी जो मौत हो गई उनकी तो, उनकी मौत हो गई है, जी वफात तो नहीं हुई उनकी। नहीं, वो नहीं, ये नहीं। आयत क्यों पेश कर रहे हैं? फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंता रकीबा अलैहिम। वो भी वही लफ्ज है, तो पिता के माने फलम तो फिर में पूरा पूरा ले लिया गया। तो वो कह रहे हैं ना मुझे- कि मैं भी यही कहूंगा कि जब तूने मुझे पूरा पूरा ले लिया, तो अभी आप कह रहे हो उनको पूरा नहीं लिया। मैंने पूरा फलम तो तेरी जब तूने मुझे ले लिया तो तू ही तेरा रकीब था, तू ही तो उसका जो तो है किस तरह लिया था उस वक्त, किस तरह लिया था? नहीं तो माजी की बात कर रहे हैं, जो तो आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए कि मैं यही जवाब दूंगा कि फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंता रकीबा अलैहिम। क्या तर्जुमा है उसका? तर्जुमा फलम तो नहीं गया। यही आयत का तर्जुमा है ना कि क्या- जब क्या? तक मैं उनमें मौजूद था, मैं उनका निगरान था, जब तूने मुझे वफात दे दी, ठीक है? नहीं जब तुझे तो मैंने वफ़ात फिर नहीं। गलत फिर गलत करी, फिर गलत। हाँ, जब तूने मुझे अच्छा, उठा जब लिया तूने मुझे, हाँ, जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा रहे ना, वो खुद कह रहे कि जब तूने मुझे उठा लिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब उठाया है? हुजूर से की तरफ तो खिताब नहीं हो रहा, अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम से बात कर रहे हैं। हाँ, और ईसा अलैहि सलाम जवाब इसी दे रहा है। हदीस, मैं हदीस की बात इस पे कर रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आई। नहीं मुझे तो मैंने समझ में कहा आ रही है, आपको- खैर समझ में मुझे बहुत मेरे प्यारे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही बात हो रही तौफीक फौत में और मौत में कुछ फर्क तो है वहां अरबी पे ज़बान में? तवफ़ैतनी का लफ्ज नहीं, हुजूर पाक से आपने कहा कि तवफ़ैतनी की मिसाल मैं दे रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की। मैंने कहा कोई दूसरे बंदे को अल्लाह ताला ने पूरा पूरा लिया है, आपने कहा नहीं लिया, नहीं ठीक लिया। है? मैंने आपको मिसाल दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यही लफ्ज अपने लिए पूरा पूरा लेने का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं भी अल्लाह को यही कहूंगा कि जब तूने मुझे पूरा पूरा ले लिया तो तू ही उनका निगरान है। अब आप जो कह रहे हो कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम इनकी मिसाल है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो फिर आसमान पर बैठे होंगे ना। हुसलम को कहाँ फलम तौफीक ये हदीस है 4625 बुखारी शरीफ, क्या है उसमें, क्या लिखा है? 4625, हाँ उसमें ये बात- आयत कोट की गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी वही कहूंगा, वो कह चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? मैं भी वही जवाब दूंगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंता रकीबा अलैहिम। ये- हाँ,
तो पहले अब कुरान की ये तो दो चीजों के लिए साबित हो गया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ वो जो पूरा पूरा लेना है उसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा पूरा लिया गया है। नहीं। आप जहां ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो वहीं पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये बताइए, कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए, किसी के माने को इख्तियार करने के लिए कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। इन्नी मुतवफ़्फ़िका और आफ़िका का क्या तर्जुमा करेंगे आप? आप मेरे सवालात किधर गए? उसको लात मैं मेरे जो आपके मैंने ये चीजें उठा सवाल दी। आपके सवालात का जवाब देने के लिए तो समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे ना भाई, मुश्किल ये है। आप ना अच्छी हाँ, उर्दू बोल, इसका आप ना जो- अरबी इसका जानते जो- हैं ना, आप अरबी जानते हैं ना उर्दू आप आप तो जानते हैं। आलिम है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ तो आलिम की बात आलिम सुनते, साहब, आलिम की बात आलिम साहब, सुनते क्यों? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने मुझे एक बात समझाई कि ईसा हाँ। अलैहिस्सलाम को पूरा पूरा लिया गया, जी तो हाँ। जब मैं देखता हूँ हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरा पूरा लिया गया है, तो आप तो गलत बात कर रहे हो भाई। कुरान में तो सिर्फ आप ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हो, वहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरा पूरे लिए गए, तो ये भाई कौन बात सी है, चीज मानते हो आप? भाई सुने, कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, हदीस में बाद में जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट, पहले सुने सुने एक सुने, ज्यादा मिनट, बोले एक मिनट। बोले मत बोले मत बोले मत। आप आपसे इसका नहीं तर्जुमा कह रहा करें, हूँ, प्यारे भाई, करो। इन्नी मुतवफ़्फ़िका और आफ़िका का क्या तर्जुमा है? कह रहे हैं इरशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम एक सलाम। मिनट यार, म्यूट। बिल्कुल बिल्कुल जी इरशाद साहब करें। जी, मैं कह रहा हूँ इन्नी मुतवफ़्फ़िका और आफ़िका का क्या तर्जुमा करते हैं? जितने इस वक्त दुनिया खुद और इस पे कादियानी आबाद हैं, बताइए क्या तर्जुमा करते हैं? इन्नी मुतवफ़्फ़िका और आफ़िका लगा क्या तर्जुमा? वही करते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए किया, तवफ़्फ़तनी के वो मायने करेंगे। बता देते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब वो दे रहे सूरह माइदा का, ठीक है। और क्या? ये जो वादा किया जा रहा है इन्नी मुतवफ़्फ़िका, ये तो खुदा ताला वादा कर रहा है कि मैं ये करूंगा। क्या अब करूंगा? उस वादे का जो मैं तुझे वफात दूंगा, तो अच्छा। तेरा रफा करूंगा अपनी तरफ, काफिरों से तुम्हें निजात दूंगा, ये सारे वादे किए ना, हाँ, ठीक है। हाँ, कयामत तक तुम्हें ये बाकी वादे भी मौजूद है, एक गालिब रखूंगा तेरे मानने वाले को। अब ये वादे जो है ना, होने के बाद ईसा इब्न मरियम से खुदा ताला सूरह माइदा में पूछ रहा है, क्या तुमने इनको कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना दो? तो वो कह रहे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे बाद इन्होंने क्या किया है। मैं तो उनको यही तालीम देता रहा कि उस रब की इबादत करो जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। मैंने तो इनको कोई दूसरी तालीम दी नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये तालीम कहाँ से आई है। तो खुदा को कह रहे कि मैं तो नहीं जानता हूँ कि भाई जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन तू तो दिलों के राज जानता है। अगर मैंने ऐसे कहा होगा तो तुम्हें तो मालूम होगा। फिर कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं जब तक उनमें मौजूद रहा, कि मैं यही बताता रहा और मैं उसी का गवाह हूँ। जब तूने मुझे वफात दे दी, फलम्मा तवफ़्फ़तनी कुन्त अंतर रकीब अलैहिम, कि जब तूने मुझे वफात दे दी क्या तो वफात तू दे ही दी? उन पर निगरान है। क्या वफात दी? ये क्या वफात, मतलब? जिस तरह आपके अबाओ अजदाद इधर से गुजर गए ना, वो जवाब नहीं दे रहे, आपने जवाब देना है। आपके वालिद साहब अभी जवाब देख सकते इस वक्त जो आप कर रहे हो, वो मौजूद है इधर। सही, फलम्मा तवफ़्फ़तनी का क्या तर्जुमा कर रहे हैं आप? फलम्मा तवफ़्फ़तनी का ये कर रहा हूँ कि इरशाद अंसारी यहाँ पे मौजूद है, अब इनके वालिद साहब मौजूद नहीं है। ये इस वक्त जवाबदेह है इस चीज का जो ये कह रहे हैं। इनके वालिद साहब नहीं है, वो गुजर चुके हैं इस दुनिया से। तो जो भी ये कर रहे हैं ना, इन्होंने इसका जवाब देना है। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं मेरे बाद उन्होंने क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं है। सही बात है। तो फलम्मा तवफ़्फ़तनी का क्या तर्जुमा करेंगे? यही जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। नहीं बताया ना, आप तर्जुमा करें, कुरान के कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हैं। आपका कॉन्टेक्स्ट दो अल्फाज है अंसारी साहब, या आप जो है ना किसी पागल खाने से छूटे हुए हैं, ठीक है, या तो इस तरह है जो दिमाग का आपका लगता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, सही बता रहा हूँ। मैंने अभी तक फलम्मा तवफ़्फ़तनी के अलावा क्या बताया? मैंने तो यही तवफ़्फ़तनी की बात कर रहा हूँ। दो आयतों से मैंने आपको जवाब दिया। तो फलम्मा तवफ़्फ़तनी का क्या तर्जुमा है? फलम्मा तवफ़्फ़तनी का ये मतलब है कि इरशाद अंसारी साहब जो है ना, उनको फलम्मा तवफ़्फ़तनी का मतलब नहीं पता। मेरे प्यारे, मेरे मुन्ने, मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे मैं कह रहा हूँ फलम्मा तवफ़्फ़तनी का क्या तर्जुमा करेंगे आप? घड़ी पे चूहा नाचा। हाँ
जब से आप बहुत तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, मैं इतने मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फलम्मा अच्छा, सूरह आप माइदा में मुझे जो है चू 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 चाचा नहीं, बना हाँ, रहे हो, चूचू बच्चे होंगे, बना रहे हो, ये तमीज है? चूचू होंगे, वो चींचू और चींची बाद में अच्छा करें। ये बताओ फलम्मा तवफ़ैतनी का क्या मतलब है? हाँ बता, जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने अपने कब्जे में ले लिया, क्या मतलब है? मतलब ये मुझे बताओ ना, फलम्मा बता रहा हूँ ना, तवफ़ैतनी का बता, क्या जब मतलब है? जब तूने मुझे उठा लिया या अपने कब्जे में कब? ले लिया, अभी तो कह ना ना उठा लिया जी, जी। कहाँ? फलम्मा तवफ़ैतनी का जब उठाना हुआ तो राफियों का क्या होना हुआ? नहीं, जब मुझे तूने अपने कब्जे में ले लिया, अभी कब्जा हो गया, अभी उठा नहीं, ले लिया, क्या ले कर रहे लिया, हो? जब ले लिया डाकू तूने कोई- मुझे लिया मुतवफिका के, अच्छा इन्नी मुतवफिका के बाद राफे फलम्मा तवफ़ैतनी का मतलब बताओ क्या है? फलम्मा जब तूने मुझे ले लिया, जब तूने मुझे अभी अपने उठाना कब्जे में नहीं लिया। है, उठाना नहीं, कैंसिल हो गया। नहीं, कैंसिल नहीं हो गया, कैंसिल नहीं है। कौन सा जब लेना तू- है? उठाना जब है तूने- या कैंसिल जब- करना है? जब पूरा तूने पूरा मुझे करना है? जब तूने मुझे अपने कब्जे में ले लिया, तू इसका निगरान कब्जे में ले लिया, ये खुदा माने। ताला के कब्जे से वो नहीं छूटेंगे ना, कब्जे में ले लिए, पूरा पूरा लिए। ये इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरा पूरा लिए कब्जे में, खुदा ताला ने आधा लिए। वो बात अब कुरान शरीफ की बात है, हदीसों की बात नहीं। मैं पूछा मैंने पुराना वाला शुरू में किया था, मैंने कहा हदीस पता नहीं क्यों इसने अलाउ कर दिया आपको, हमें तो करता ही नहीं अलाउ हदीस। हदीस को लेना ही चाहिए। इन्नी हाँ, मुतवफिका चलो के- सही है सही है सही है सही इन्नी है। मुतवफिका के- अच्छा इसका तर्जुमा इन्नी मुतवफिका के बाद अच्छा। राफे सुने, अच्छा नहीं, बाद में कहा अच्छा नहीं, आपने अभी खुद कहा इन्नी मुतवफ़ी का उठा लिया और फिर राफे का भी उठा लिया। आप दो मरतबा किस तरह उठवा सकते? मैंने तो मुतवफिका मैंने उठाने के बाद तर्जुमा तो मैंने किया, तो मैंने अपने कब्जे में ले अच्छा। लिया जी, इन्नी में मैंने कब्जे में ले लिया और उसके बाद तो तूने पहले अपनी में तरफ उठा- नहीं, पहले वो कब्जे में नहीं थे। नहीं, कब्जे में कैसे अब कब्जे में नहीं, अल्लाह ताला ने अपने कब्जे नहीं। में लेगा, अपने पर उठा लिया। तो पहले अल्लाह के कब्जे में थे कि नहीं थे वो? मैं कब्जे में तो है, यहाँ पे कब्जे में लेके उठाने के मायने भी आता, कब्जे में ले लेना। नहीं उठाना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ उठा रहे हो, वहां दूसरी मर्तबा भी उठा रहे हो, या तो कब्जा करवा लो या उठा लो, एक चीज करो। अपने कब्जे में ले, जब आप इसका तर्जुमा करें आपको समझ में आ जाए। इन्नी मुतवफिका के बाद आपने करना है। सुने इन्नी सुने सुने मुतवफिका के क्या मेरे तर्जुमा प्यारे कर रहे हो? मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, इसका तर्जुमा करें। इन्नी मुतवफिका और आपका क्या तर्जुमा है? क्या तर्जुमा करोगे आप बताओ जरा? क्या तर्जुमा है? इन्नी मुतवफिका और आपका क्या तर्जुमा है? हाँ क्या तर्जुमा है बताओ? करें तर्जुमा, आप करें, आप करें तर्जुमा क्या है? करो ना, आपको आलिम हो ना, बताओ क्या हाँ, मैं किया? आलिम हूँ, तो फिर मैं तुझे अपने कब्जे में ले लूंगा, अपने ले लूंगा, अपने उसमें ले लूंगा और उसके बाद तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। अच्छा, पहले कब्जे में ले लूंगा फिर और उसके उठा बाद- लूंगा, इसमें उठा- हाँ सुन लो, अब सुन लो, हाँ, ये चलो। दो मतलब इन्होंने बताया कि पहले कब्जे में ले लूंगा फिर मैं उठा हाँ। लूंगा, मतलब बस। ये कि पहले ना कब्जे में लिया, पहले कब्जे में नहीं लिया था, नहीं तो ठीक है? जी पहले कब्जे में नहीं थे, खुदा ताला के कब्जे से वो जी। बाहर थे, जी, फिर मैं- इस तरह था, पता नहीं किसके नहीं, कब्जे खजूर- में थे। मैं रुक जाओ, ले- रुक जाओ, अच्छा रुक लेने की बात छोड़ दो, जरूर फिर उठा लिया। हाँ चलो मैं ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। अच्छा, अभी वो उठा लिया उनको, मैं उठा लिया, राफे पे मैंने अपनी उठा तरफ लिया। ले लिया है पूरा पूरा। अपनी तरफ ले, जी आप पूरा ले लिया। हाँ, तो ले पूरा लिया और पूरा अपनी दोबारा तरफ तो नहीं उठा- आएगा ना? मैंने ले कुरान लिया और मजीद अपनी में- नहीं सुने मेरे प्यारे, मैं तुझे ले लूंगा और अपनी तरफ और अब उठा लूंगा अपनी तरफ। ये तर्जुमा है, मैं ले लूंगा तो उठा तुझको लिया, और उठा हाँ, उठा तो लूंगा पहले अपनी तरफ। लेकर उठा पहले चुके ले- हैं ना, लेके नहीं, उठा कहाँ चुके, कहाँ उठा चुके? नहीं उठाए, नहीं उठाए। मुतवफिका के माने उठाने के नहीं होते। नहीं, मुतवफी का हो चुकी है। मुतवफिका अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है कि मैं तुझे अपने कब्जे में ले लूंगा और फिर अपने उठा लूंगा अपनी तरफ। मैं कह रहा हूँ अभी इस आयत में कौन सी चीज पूरी हो चुकी? इन्नी मुतवफी का जो खुदा ताला वादा कर रहे हैं, इसमें कौन सा वादा पूरा हो चुका है? वादा पूरा हो चुका है ना कि मैं तुझे कौन सा वादा? अपने कब्जे में ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। ये अल्लाह ताला उसको किधर? खुशखबरी दे रहा है अल्लाह ताला। तो हुआ तो अभी नहीं है ना, ये तो बात मैंने की हो बात है ना। चुका ना। नहीं अरे नहीं क्या नहीं नहीं, यहाँ पे तो टेंस ही नहीं है भाई, कहाँ पे पास की अच्छा ईसा इन्नी मुतवफी का, ए ईसा मैं तुझे वफात दूंगा, इस आयत से तो भाई आप साबित ही नहीं कर सकते कि ये बात जो है ना अभी हुई है। बताओ भाई अपने अकीदे की निस्बत ये आयत। मुतवफिका के माने वफात दूंगा प्रेजेंट है या ये पास्ट है कि फ्यूचर है? नहीं वो तो खैर पास्ट है, नहीं, दूंगा क्या है? अभी नहीं हुआ ना, नहीं फ्यूचर है, नहीं हुआ। अच्छा इन्नी मुतवफिका का क्या तर्जुमा है?
ईसा अलैहिस्सलाम किधर है इस वक्त, किधर है? नहीं वो तो वो खैर तो बात नहीं है। हुआ ना। इन्नी मुतवफिका का क्या तर्जुमा है? ईसा उसका नहीं अलैहिस्सलाम बयान किधर आता। है इस टाइम? नहीं अंसारी साहब, इन्नी मुतवफिक का क्या तर्जुमा है? यही, हाँ आपने जो किया है ना, क्या है? अभी मैं आपको बता हाँ, रहा हूँ कि इन्नी मुतवफी का क्या किया कि मैं तुझे कब्जे में लूंगा, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाद की बिल्कुल बात है ठीक। ना, इस वक्त हाँ, हो बिल्कुल चुका है ठीक। कि नहीं हुआ? हाँ तो इस वक्त हुआ है? अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा कब्जे में लेकर? नहीं, उसके बाद तो उठा लेंगे ना। अब ये मुझे बता दे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कब्जे में लिया हुआ है पूरा पूरा कि नहीं हुआ? मैंने कब्जे में लेकर उठा लिया अल्लाह ताला ने अपनी तरफ। किधर लिखा हुआ है वो, कहाँ से आप मुझे वो है ना बताओ कि राफे कब्जे का में है ना? लेकर उठा लिया? राफे का है किधर ना? है? राफे का क्या मतलब है? वो भी तो बाद में है कि मैं तुझे पूरा पूरा कब्जे में लूंगा फिर उठाऊंगा। आप हाँ, साबित फिर- करो कब्जा कब हुआ है, कब्जा कब्जा कहाँ से हुआ है? जब उस वक्त अपने अपने उसमें ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और अपनी तरफ उठा लिया अल्लाह ताला ने। कब्जा अगर मैं किधर हुआ है गलत भाई? हूँ, यहाँ पे मेरे तो बात प्यारे- की बात हो रही है। मेरे